Hello everyone. Welcome to the virtual classes of Oscar Public School. How are you all students? I hope you all are fit and fine at your home. So how's your studies now? I hope that is also good. So students, our final term syllabus has completed now. So from today onwards, we are just going to start the revision of chapters. So first we can take the chapter number 11 because we have already done the chapter. So let's start with the chapter number 11. Students, we have already read about this chapter but we are just going to start the revision. So इस बार जो हम रिवीजन करेंगे वो हम सभी लोग बहुत कॉन्सेंट्रेट होके और बहुत ईजी वे में करेंगे. Got it? Whenever you have problem in a particular word, so you can use the dictionary. आपको कोई भी वर्ड बहुत डिफ़िकल्ट लगता है सो यू हैव टू जस्ट अंडरलाइन दैट वर्ड एंड गो थ्रू द डिक्शनरी. इफ़ यू डोंट हैव डिक्शनरी सो जस्ट चेक फ्रॉम द गूगल एज वेल. गॉट इट बच्चे? सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. बेटा इन चैप्टर नंबर 11 लेट्स कम्युनिकेट. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर? लेट्स कम्युनिकेट. So beta in this chapter we are just going to beginning of communication कि how to start the communication, different means of personal communication, different means of mass communication. Beta just before we are going to start, have you think about it? When you have to communicate something to someone, what do you do? जब भी आपको किसी से communicate करना होता है, communicate means संवाद करना होता है, so आप कुछ करते हैं या फिर किसी से बात करते हैं किसी भी तरीके से. डू यू स्पीक टू दैम? डेफिनेटली. और इफ़ दे आर नॉट हियर यू, अगर वो आपको नहीं सुनता, यू मेक अ फ़ोन कॉल और सेंड अ लेटर. इफ़ यू वॉन्ट टू टेल समथिंग टू योर फ्रेंड्स while your teacher to still in a class, so you may even make use of sign. So what exactly is communication? Let us see in this chapter कि what is that meaning of communications. Sending and receiving messages is called a communication. Beta, when we are sending something or receiving something, this is the communication. आपसे कोई चीज़ आपको बोली जा रही है और उस बात को सुनकर आप उसका रिप्लाई दे रहे हैं. It means you are a sender or receiver also. So these are messages, transfer of messages. This is called a communication. Sending and receiving messages is called communication. Repeat after me. Sending and receiving messages is called communication. We often communication by talking. Definitely हम कैसे बात करते हैं, कैसे communicate करते हैं एक दूसरे से? बोलकर. Because we have some language. But in a earlier time, जब कोई language ही नहीं थी, when language was not known, people used to sign language to communicate among themselves. यानी कि आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वो कैसी लैंग्वेज यूज़ करते थे? साइन लैंग्वेज. लेटर ऑन दे स्टार्टेड ड्राइंग साइन एंड सिंबल टू कम्युनिकेट. यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए हम साइन एंड सिंबल्स भी बनाते हैं. आप फ़ोन में भी देखते हैं, सम देयर इज़ अ साइन, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, ड्रिंकिंग, हॉस्पिटल. तो दीज आर सम साइंस एंड सिंबल्स जिससे कि आप किसी भी चीज़ का पता लगा पाते हो. Still later, people developed language and right to communicate. बेटा अभी आप जो बोल रहे हो, जो आप स्किल्स यूज़ करते हो बोलने के लिए, स्पेशली स्पीकिंग एंड राइटिंग, सो ये बेसिकली क्या है, इसके लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है. लैंग्वेज के लिए आप हिंदी में भी पढ़ते हैं ना, लिपि, उसकी ज़रूरत होती है. जैसे आपकी हिंदी आप किस में लिखी जाती है? इज़ इन देवनागरी लिपि और इंग्लिश इज़ इन रोमन. So beta is in a previous time there is a no language, तो how the people are communicate? कैसे communicate करते थे? By through the sign language. Then after later on they used to start the sign and symbol also to communicate. Then फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया पीपल ने लैंग्वेज डेवलप करी. नाउ दे आर स्पीकिंग एंड राइटिंग ऑल्सो. It is believed that people learned the art of writing using alphabet and symbols अराउंड 5000 ईयर्स अगो. यानी कि आज से 5000 साल पहले लोगों ने अल्फ़ाबेट एंड सिम्बल्स को यूज़ करना शुरू किया होगा. इनिशियली दे आर ग्रेव्ड देयर मैसेजेस ऑन क्ले टैबलेट्स. स्टार्टिंग में इन्होंने कैसे किया? बिकॉज दैट टाइम देयर इज़ नो पेपर. पेपर तो था ही नहीं.
सो हाउ कैन दे आर राइट? सो दे आर राइटिंग ऑन क्ले टैबलेट्स. क्ले देखा है आपने, चिकनी मिट्टी जिसे आप क्ले मॉडलिंग भी बनाते हैं, उस पर क्रेविंग करते थे. एंड ऑल्सो राइट ऑन पाम लीव्स. ठीक है, पाम ट्री होता है, उसकी लीव्स पर ये लिखते थे. पेपर एंड प्रिंटिंग ब्रॉट अबाउट अ टर्निंग पॉइंट इन द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेट एंड हेल्प इन द मास प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स. बेटा जब प्रिंटिंग प्रेस का, अभी आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं दिस इज ऑल्सो अ प्रिंटेड बुक्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो जब प्रिंटिंग प्रेस का प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ, सो देखा गया कि लाइफ ने एक बहुत टर्निंग पॉइंट लिया. और अब एक ही समय पर जिन बुक्स को हैंड रिटन लिखने में काफ़ी मंथ और ईयर्स लगते थे, अब वही बुक्स जो है विद इन कुछ मिनट्स और कुछ घंटों में वो आपके पास पहुंच जाती विद द मास प्रोडक्शन. मास प्रोडक्शन मतलब इन अ फ्यू टाइम, कुछ ही मिनट में नंबर ऑफ कॉपीज़ का प्रिंट होना. ठीक है, एक ही साथ बहुत सारे नंबर ऑफ कॉपीज़ का प्रिंट होना. मैसेजेस वर नॉट सो थ्रू द ट्रेंड पिजन और स्पेशल मैसेंजर्स, बट दिस मैथड इज कम्युनिकेट वॉज स्लो एंड नॉन रिलायबल. नॉन रिलायबल का मीन नॉट ट्रस्टेड, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था. आपको पता है पहले मैसेजेस कैसे भेजे जाते थे? बिकॉज दैट टाइम देयर इज़ नो फ़ोन कॉल, देयर इज़ नो व्हाट्सएप, नो मोबाइल्स. ठीक है, सो उस समय पर लेटर्स जो है वो ट्रेंड पिजन्स, देखे है ना कि क्या है, पिजन मीन्स कबूतर, ट्रेंड पिजन्स के थ्रू मैसेजेस भेजे जाते थे. और वो काफ़ी स्लो था. स्लो मीन्स अगर हमें आज कोई न्यूज़ देनी है तो वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद पहुंचती होगी, और सो ऑन में भी लेट, ज़्यादा भी. और नॉन रिलायबल का मीन्स जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. ठीक है, इन आवर टाइम एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस technology has helped in development of many modern means of communication. Definitely we are using the modern means of communication. This is, अभी मैं आपसे एक मास क्लासेस ले रही हूँ, मास टीचिंग कर रही हूँ, यानी कि एक ही समय पर बहुत सारे बच्चों की क्लास ले रही हूँ, तो दिस इज़ द मास टीचिंग. सो नाउ वी आर लिविंग इन दिस पीरियड कि हमारे पास साइंस ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई है, जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो लेट अस लर्न अबाउट द सम ऑफ पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. बेटा दिस इज द जॉनेस गुटेनबर्ग, द इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग मशीन. हु इज ही? जॉनेस गुटेनबर्ग, द इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग मशीन. इन्होंने प्रिंटिंग मशीन इन्वेंट करी थी. अगर ये प्रिंटिंग मशीन इन्वेंट नहीं करते तो आज भी हम हैंड रिटन बुक्स ही पढ़ रहे होते. द फर्स्ट थिंग इज personal communication. Basically beta there is a two type of communication: personal communication and mass communication. What is this? Personal communication and mass communication. Repeat after me, how many types of communication? Personal communication and mass communication. So let me read first, what is that personal communication? Personal communication क्या होता है? Personal communication means communication between two individuals. Like जैसे आप फ़ोन पे बात करते हैं कि आपने कॉल किया और सामने वाले पर्सन ने आपका कॉल पिक किया, या आपने कोई लेटर लिखा तो एक इंडिविजुअल पर्सन ने वो लेटर रिसीव किया. सो पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स. 2 या 2 से 3 लोगों के बीच में वो डिवाइड हो रहा है कम्युनिकेशन. लेटर्स, telephone, fax are some means of personal communication. ठीक है, so first we are just reading about a letter. Letter are the most common means of communication. We can send letter through the post office. Post office के थ्रू भेजते हैं हम letters. Post office is the first agency to provide reliable means of communication. बेटा post office एक पहली एक ऐसी एजेंसी थी जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते थे कि वो सही लेटर और हमारे लेटर सेफली उन तक पहुंचते हैं जिसको भी हमने भेजने हैं. वी कैन सेंड एरोग्राम्स. एरोग्राम्स क्या है? बेसिकली बेटा एरोग्राम्स इज अ लाइट वेट लेटर with imprinted stamp and gummed paper used for airmail correspondence to the other countries. एक बेटा लाइट वेट यानी कि हल्का सा एक लेटर होता था जिस पर स्टैंप लगी होती थी, और गम्ड पेपर होता था, मतलब उसको हम स्टैंप लगा के सील भी कर सकते थे,
और दूसरी कंट्रीज़ में ईजिली भेज सकते थे. ठीक है. लेटर्स, मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस. यू नो दैट कि हम लेटर के थ्रू यानी कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम मनी भी सेंड कर सकते थे, बिकॉज उस समय पर हमारे पास इंटरनेट ऐसा नहीं था कि हम फ़ोन पे, गूगल पे, दीज काइंड ऑफ थिंग्स या एटीएम कार्ड यूज़ कर सके. सो पहले मनी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए मनी ऑर्डर्स भेजे जाते थे. अर्जेंट मैसेज कैन बी सेंड थ्रू द स्पीड पोस्ट. बेटा नॉर्मली पोस्ट जाती है तो इट टेक्स 10 to 15 days दैट टाइम, उस समय के लिए. और अगर अर्जेंट मैसेज भेजना होता था तो वी कैन सेंड द स्पीड पोस्ट. स्पीड पोस्ट से 2 या 3 दिन में वो लेटर पहुंच जाता था. अ हाई स्पीड पोस्टल सर्विस. इंडिया हैज़ मोर देन 1.5 lakh पोस्ट ऑफिसेज स्प्रेड ऑल अक्रॉस द कंट्री. यानी कि हमारी कंट्री में 1.5 लाख से भी ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज हमें मिलेंगे. The second and my favorite is telephone. Beta, in a previous paragraph we have to read about the letter, but if we send it the अर्जेंट मैसेज, यानी कि अगर हम किसी को अर्जेंट मैसेज भी भेजते हैं तो इट कैन टेक्स 3 to 5 days. So now the invention of telephone, it was invented by Alexander Graham Bell in 1876. जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा कि बेल है. बेल किस में कनेक्ट होती है? टेलीफोन में. यानी कि बेल किस में रिंग होती है? टेलीफोन में. सो आपको नाम से क्लिक हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्रामा बेल in 1876. Who was the inventor of telephone? Repeat after me. Alexander Graham Bell. It brought a revolution in the field of communication. But after the invention of टेलीफोन, एक नई बूम, एक नया रेवोल्यूशन आया कम्युनिकेशन फील्ड में कि अब हम जिस भी पर्सन से हमें बात करनी है और वो कितनी भी दूर है तो हम सेम टाइम पर उससे बैठे हुए बात कर सकते हैं. नाउ पीपल कुड टॉक टू एनी पर्सन सिटिंग अ डिस्टेंट प्लेस. यानी कि अब हम उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं और इंस्टेंट रिप्लाई भी हमें मिल सकता है. सो टेलीफोन इज स्टिल पॉपुलर. However, many new developments have taken the place in telephonic communication. Now we have to मोबाइल फ़ोन और सेल फ़ोन. बेटा जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं दैट इज़ अ सेल फ़ोन, यानी कि फ़ोन का ही छोटा रूप सेल फ़ोन. और मोबाइल फ़ोन क्यों कहते हैं? दिस इज़ द फ़ोन बेसिकली. मोबाइल मीन्स होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो हम चलते फिरते यूज़ कर सकते हैं. लाइक देयर इज़ सम मोबाइल ATMs ऑल्सो, यानी कि वो ATM जो कि किसी ट्रक या किसी भी कार के पीछे, किसी भी बस के पीछे होते हैं और वो चलते फिरते रहते हैं. दैट इज़ अ मोबाइल टेलीफोन, मोबाइल ATM. सो इसीलिए हम जो भी फ़ोन हम सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली मोबाइल फ़ोन है. अ वायरलेस फ़ोन दैट वी कैरिड अवे टू एनी प्लेस. यानी कि सबसे पहले आपने देखा होगा सभी के घर में लैंडलाइन होता था, बट वो घर तक ही या ऑफिस तक ही सीमित होता था. उसके बाद इन्वेंशन हुआ मोबाइल फ़ोन का. सो मोबाइल फ़ोन को हम कहीं पर भी विदाउट वायर, वायरलेस मीन्स विदाउट वायर, कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं. अ मोबाइल फ़ोन कैन बी यूज टू टॉक एज वेल एज सेंड द टेक्स्ट मैसेजेस विद द SMS. SMS मीन्स शॉर्ट मैसेज सर्विस. शॉर्ट मैसेज सर्विस. सो नाउ वी आर यूजिंग द मोबाइल फ़ोन, यानी कि अब मोबाइल फ़ोन से हम बात करने के साथ साथ मैसेज भी टाइप कर सकते हैं. बट इन नाउ अ डेज देयर इज़ अ क्वाइट पॉपुलर, दिस इज़ द स्मार्टफोन. यानी कि जो हम फ़ोन अभी यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज़ कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड अ स्मार्टफोन. वाई वी कॉल्ड इट स्मार्टफोन? इसको स्मार्टफोन क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज इट हैज़ सम एडवांस फीचर्स. क्यों कहते हैं इसे स्मार्टफोन? क्योंकि इसमें कॉलिंग और मैसेजेस के साथ साथ और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लाइक कैमरा, रेडियो, मल्टीमीडिया, इंटरनेट फैसिलिटी, टच स्क्रीन, कैलकुलेटर, flashlight, so on. There is a many more things जो कि फ़ोन से ज़्यादा चीज़ें इसमें हैं. WhatsApp and Hike are the latest method of smartphone based on communication. WhatsApp के थ्रू भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो. हाइक और अदर
आजकल तो बहुत सारे गूगल डियो, सो एंड सो मैसेंजर्स, बहुत सारी चीज़ें आ गई जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. वी कैन सेंड लेटर, वी कैन सेंड अ रिटन और वॉइस मैसेज फ्रॉम वन स्मार्टफोन टू अनदर. ये भी आप जानते ही हैं बिकॉज यू आर ऑल्सो यूजिंग अ स्मार्टफोन कि हम इस स्मार्टफोन से रिटर्न तो मैसेज भेज सकते हैं, साथ के साथ वॉइस मैसेज में भी कमांड दे सकते हैं और बात कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो सेंड द पिक्चर्स एंड वीडियो ऑल्सो डेफिनेटली, बट फॉर दिस इंटरनेट फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल ऑन द स्मार्टफोन. बिल्कुल बेटा, ये तो है ही कि हमारे पास स्मार्टफोन में हम कैमरे के साथ साथ पिक्चर्स, वीडियोस, सॉन्ग्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, सभी चीज़ें ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं. बट उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि हमारे फ़ोन में इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल हो. ठीक है, तभी तो आप भेज पाएंगे कोई चीज़. सो बेटा, दिस फ़ोन इज़ कॉल्ड अ स्मार्टफोन. वाई दे आर कॉलिंग स्मार्ट? क्योंकि इसमें एडवांस फीचर्स हैं. कैमरा, टच स्क्रीन, मल्टीमीडिया, इंटरनेट फैसिलिटी, वी कैन सेंड द पिक्चर्स, वीडियो. अब तो वीडियो कॉलिंग्स भी हो जाती है. ठीक है. द अनदर वन इज फैक्स. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैक्स? फैसिस्मेल ऑटोमेटिक जेरोक्स. फैसिस्मेली ऑटोमेटिक जेरोक्स यानी कि अ फैक्स मशीन इज यूज टू सेंड द ट्रू कॉपी ऑफ रिटन और typed message to any part of the world. It can also be used to send pictures and photograph. बेटा फैक्स बेसिकली क्या होता है? फैक्स मशीन जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसका भी एक नंबर होता है और इसमें हमारी एग्जैक्ट कॉपी यानी कि ट्रू कॉपी किसी और जगह पर, जैसे राइट इफ़ आई वांट कि मुझे कोई भी चीज़ अर्जेंट बेसिस पर सिंगापुर भेजनी है, एनी डॉक्यूमेंट इन अ अर्जेंट बेसिस, और अभी स्पीड पोस्ट भी नहीं जा सकता. सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं किसी भी डॉक्यूमेंट को फैक्स कर दूं. तो जब मैं उसे फैक्स करूंगी तो उसकी ट्रू कॉपी वहाँ पर पहुँच जाएगी. ठीक है. सो इट इज़ अ ट्रू कॉपी ऑफ अ रिटन और अ टाइप्ड मैसेज टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू सेंड पिक्चर एंड फोटोग्राफ्स यानी कि हम इसके ज़रिए पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स भी भेज सकते हैं. अ फैक्स मशीन इज कनेक्टेड टू द टेलीफोन लाइन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैक्स मशीन किससे कनेक्टेड रहती है? टेलीफोन लाइन से. द डॉक्यूमेंट टू बी सेंड इज इंसर्टेड इन द मशीन at the one end and within the minute the exact copy can be received to other end. यानी कि जैसे ही मैंने फैक्स मशीन में वो अपना डॉक्यूमेंट डाला, उस मशीन ने उसको रिसीव किया और जहाँ कहीं भी मुझे भेजना है वहाँ पर उसकी ट्रू कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी निकल कर वो रिसीव कर सकते हैं. गॉट इट बेटा? सो दिस इज़ द वेरी फेमस एंड द दैट टाइम, एंड आजकल तो और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बट उस समय पर फैक्स मशीन जो थी वो बहुत फेमस थी. आज भी हमें एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स कहीं भेजना है तो वी कैन यूज़ द फैक्स मशीन ऑल्सो. ईमेल. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? यस, इलेक्ट्रॉनिक मेल. बेटा आपको पता है पोस्ट जो लेटर होता है उसको भी मेल ही बोलते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ it is called only simple mail, but email means electronic mail. Email or electronic mail is a method in which we type a message to on a computer. ईमेल में क्या है? हम अपना मैसेज टाइप करते हैं एंड सेंड इट टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन. यानी कि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप तो है लेकिन इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप किसी भी पर्सन को ईमेल नहीं कर सकते. और ईमेल में क्या है? बेसिकली इट अ टाइप अ मैसेज ऑन आवर कंप्यूटर एंड सेंड इट टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड with the help of internet. We can also use an email to send any document containing picture, music, video, etc. डेफिनेटली बेटा, इसके लिए क्या है? ईमेल में हम कुछ भी भेज सकते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, पिक्चर्स हो, वीडियोज़ हो, म्यूज़िक हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. On the order to use email facility, we have to create a email account और वेबसाइट लाइक अ gmail.com. यानी कि बेटा आपको ईमेल करने के लिए पहले अपनी जीमेल पे आईडी क्रिएट करनी पड़ती है. आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए. ठीक है. जैसे लाइक gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, सो ऑन.
We can use this facility on a computer or a smartphone having internet connection. बेटा इन प्रीवियस फोन्स में तो ये था ही नहीं कि इंटरनेट में कैसे कनेक्ट करेंगे, बट नाउ यू आर यूजिंग द स्मार्टफोन, तो आप सभी अपने स्मार्टफोन से भी ईमेल कर सकते हो. आप लोग करते भी हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आपने भेजे हैं टीचर्स को मेल. सो दिस इज बेटा हमेशा जब भी आप पढ़ते हो तो अपनी लाइफ से उसको रिलेट करके देखा करो, तो आपको चैप्टर और अच्छे से समझ आएगा. सो आई एम जस्ट रेस्टिंग द क्लास हेयर ओनली, सो वी कैन जस्ट रीड अन above chapter in our next classes. So beta, this is the quick revision. You can write the revision work, start the revision work. This is the true false of this. When people did not know any language, they used to sign language to communicate. Definitely it is true. Telephone was invented in 1870. This is false. Telephone कब invent हुआ था? In 1876. A mobile phone can be used to send text messages. This is true. Email stands for emergency mail. No. What is the stands for email? Electronic mail. So beta, I'm leaving the class here only. I hope you understand this chapter very well. So beta, keep watching this video at least thrice. And thanks a lot, students.